Hi, hello everyone. I'm Fahmida Khatun. I'm an educator at Profession Learning app. So before going to the module demo class, I would like to get a little bit insight about Profession Learning app. So coming to the Profession Learning app, it's our motive that we don't just teach you, but we mentor you at every path of your success. So we give coaching for Gulf countries, examination for pharmacists, nurses, any healthcare allied professionals. So teaching me doesn't mean it's only about paths which you face, but also strong mentoring system with expert guidance plus personal support and smart exam preparation we build in. So coming to the what does smart guidance? What do you provide? Smart guidance is clear direction for the beginning of the preparation and which and where are your strengths and weaknesses lies and how do you build up confidence in your weaknesses and strength? How do you develop to make into your strengths and smart exam preparation with structured classes and practice questions and MCQ based question related to each exam. So, so basic evaluation plus one-to-one monitoring. So we have a basic evaluation test at our app. So you can just go and do initial assessment to know where do you stand and what's your knowledge level and what are your strengths and weaknesses and how you would you like to improve it. So one-on-one monitoring and counseling. We have individual counseling sessions where we personalized your study plan, clear goals and right guidance from day one. So coming to the area one, that is basic biomedical sciences, which consisting of approximately 10% of the exam, where biomedical sciences includes anatomy, physiology, immunology, or other basic sciences which you already studied in previous classes and previous in your 10th and 11th. I would like so, in that case, we'll discuss your performance individually, understand your weak areas in this particular area, and improve with strategy. So coming to the area two, that is pharmaceutical sciences, which is one of the highest, consisting of approximately 35% of the exam. Highest exam content is being on pharmaceutical sciences and clinical services. We'll see it later. And coming to pharmaceutical sciences, that master core pharmaceutical subjects with structured learning. We have a deep and structured pharmaceutical subjects topic, and we strengthen the your exam preparation by having MCQ discussion and reasoning and regular assessment for pharmaceutical subjects, which are completely based on theoretical. And coming to area three, that is social behavior administrative sciences. And in this social behavior administrative, everything comes about law, ethics, law, patient safety, medication safety, counseling, everything lies in area three, that is 20% of the exam. And area four, that is a one of the other than pharmaceutical sciences, clinical sciences also have much higher preference, that is approximately 35%. So here we learn about completely pharmacology of different drug classification from antibiotics to each of the classifications in depth, and pharmacotherapeutics is also being taught in this particular topic. So you can review your progress with your mentors for particular area. So coming to the next slide, we don't just give you paper or structured learning. We are here to guide you from the step one, that is data flow, credentiality. How do your credential? How does it takes place, and how, till you obtain, we are going to help you, and evaluation, and with the exam registration. Till the start, step one to step four, we are going to help you and provide you structured learning. So coming to about LMS learning platform for app, this professional learning app, what we have. So in that read, watch, practice, target, and master. So I would like to say not only about particular reading, we have master core concepts, which is compressed and easy to learn with easily with layman language and particularly good with high yield summary notes are provided. In that you can even watch a deep understanding exclusive in-app video lectures designed by experts. And practice, we have recalls and we have target oriented MCQs, and later on you can just evaluate yourself and target where you need to target more, where you need to keep your time up on particular topics and master it. So today you must join and start learning today. So coming to the demo class about diuretics. So your diuretics general principles lies with
That is one of the major drug classification for hypertension. Not only hypertension, even cardiac failure, renal failure, these all are the conditions where diuretics are used. So diuretics is the agents where which increases urination. So as hypertension, it's blood pressure. When blood pressure in the arteries are getting high, so there is high fluid overload. So these diuretic agents are given in a body for a BP patient or hypertension patient where it increases urination. Increase in urination, nothing but it increases the fluid. Like you more urine is getting excreted from the body means it is decreasing the fluid overload in the body. So automatically hypertension is being reduced. So that is the case of the diuretics definition. And coming to the site of action, nephron is one of the functional unit of kidney. So in the nephron only this diuretics also acts. And there are different parts of nephron. That's Bowman capsule, PCT, loop of funnel, DCT, collecting duct. And further next slide we can see where these different diuretics are acting. And there is Bowman's capsule. This is one of the MCQ question where Bowman's capsule only only used for filtration. A Bowman's capsule is only used for preparation. So I said Bowman's capsule. Bowman capsule is like first, all the fluid comes from efferent arteriole and efferent arteriole. You must remember this both things like basic kidney nephron, uh, nephron structure where efferent arterioles. Where A is the first letter, so all the liquids first travel to the efferent arteriole, and when they in this Bowman capsule or Bowman's capsule, glomerulus are there where only filtration takes place, like everything, every electrolyte, every ions, everything gets filtered, and by next PCT then it gets filtered according to the mechanism of action. Here only filtration takes place in Bowman's capsule. That is one of the MCQ question, mostly asked MCQ question. So coming to the different types of diuretics, how are they going to act? So we'll see about first carbonic anhydrase inhibitors. Carbonic anhydrase inhibitors. You can see this carbonic anhydrase is one of the enzyme which is used to further formation of carbonic acid. You can see this block. So here in PCT cell, on this PTC cell, there must be carbonic anhydrase enzyme acting to form a carbonic acid. But this further action is inhibited. So further hydrolysis of this carbonate ion and this carbonate ion becomes sodium bicarbonate, and this sodium bicarbonate stays in the body and it's filtered into the blood. This everything is being stopped with this carbonic anhydrase enzyme. So here this sodium bicarbonate mixing is being stopped. So this bicarbonate, of course, what happens? It excretes in the urine itself. So this is why there is alkalization of urine. That is one of the major topic for carbonic anhydrase inhibitors, where there is alkalization of urine. So this what happens in carbonic anhydrase inhibitors. So coming to the examples of carbonic anhydrase inhibitors, that is acetazolamide, brinzolamide, and orzozolamide. All amides. You can see that will be ending with amides. These are three similar ending drugs. So here, what is the mechanism of action? We already discussed. So coming to the where is it used? Indication. So mostly carbonic anhydrase is not used in hypertension, but it is used in glaucoma. Glaucoma. It is one of the eye condition. We'll further see this topic also. It's eye condition, chronic eye disease, which is seen in patients who are having already hypertension or diabetic, because these are the precursoring factors for causing glaucoma. In glaucoma, there is only one thing: there is increased IOP, intraocular pressure. So decreasing intraocular pressure, carbonic anhydrase inhibitors are used. And as IOP increases, optic nerve also gets damaged in this glaucoma patients. So because of this, they first decrease IOP, and later on the optic nerve is also being saved over here if we use carbonic anhydrase inhibitors in glaucoma patients. So this is the indication of carbonic anhydrase inhibitors. When coming to the ADRs, we'll further see all the ADRs at a time because they're all are similar ADRs. And you must remember only this alkalization of urine, which is the important thing for carbonic anhydrase inhibitors. Coming to the loop diuretics. Loop diuretics is one of the high ceiling diuretics. It means it has more
diuresis. Diuresis means more amount of urine is being out of a body. सो इधर हम लोग ये बोलेंगे कि लूप डायरेटिक्स ऐसा है कि हाई सीलिंग डायरेटिक्स है. सो इसका वन ऑफ द मेजर कंडीशन हाइपरटेंशन. सो जो भी हाइपरटेंशन पेशेंट होते हैं ना, उन लोगों को फ्यूरिसमाइड में मोस्टली देते हैं. और ये डायरेटिक्स का एक यूनिक मैकेनिज्म ये है कि ये सोडियम, पोटेशियम और 2Cl एक को ट्रांसपोर्टर है, जिसके वजह से ये इनहिबिट करता है, और उसके वजह से ना ये सोडियम पोटेशियम यूरिन से सिक्रेट हो जाते हैं, एक्सक्रीशन हो जाता है. इसके वजह से देखिए ना आप, ये सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ये तीनों को इनहिबिट करता है, ये तो तीनों यूरिन में आ जाते हैं. सो इसके वजह से जब लो सोडियम होता है तो बॉडी में हाइपोनेट्रेमिया होता है, क्योंकि सोडियम तो पूरा यूरिन से निकल जा रहा है, तो बॉडी में सोडियम कम ही हो रहा है ना. सो सोडियम के केसेस में जब सोडियम कम होता है बॉडी में, तो हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं. जब पोटेशियम कम होता है तो हाइपोकेलीमिया कहते हैं, और क्लोराइड के वजह से भी हाइपो होता है. सो इसकी वजह से ये तीनों कम हो जाते हैं. सो ये एक एडीआर समझ लो आप, जब ज्यादा केसेस में फर्दर फ्यूरोसेमाइड की वजह से वो एक एडीआर है. सो एडीआर ये तीनों बोल सकते हैं, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकेल्सीमिया, ये सब होता है. सो और दूसरा दूसरा ये बात है, ये इंजेक्शन फॉर्म में भी अवेलेबल है. इधर ऐसे दो डायरेटिक्स है, लूप डायरेटिक्स और ऑस्मोटिक डायरेटिक्स. ये दो डायरेटिक्स आईवी फॉर्म में बहुत अवेलेबल होता है. फ्यूरोसेमाइड लास्ट करके इंजेक्शन अवेलेबल है, जो 10-20 mg में प्रिस्क्राइब करा जाता है, और इवन ऑस्मोटिक डायरेटिक मैनेटॉल भी 100 ml का जाता है. ये दोनों ऐसे ड्रग्स है जो आईवी है. बाकी जितने डायरेटिक्स है ना, 5 टाइप्स के, वो 5 टाइप्स के डायरेटिक्स में ऑल ओरल फॉर्म्स में है. और एस्टेजोलामाइड मैं बोली थी ना, ये आई है, सो इसका ओरल नहीं रहता, ये आई ड्रॉप्स के इसमें अवेलेबल रहते. बेंजोलामाइड ये सब आई ड्रॉप्स के हिसाब से रहते हैं. ओरल और आईवी इंडिकेशंस नहीं है, डोसेज फॉर्म ओरल और आईवी नहीं है, सिर्फ आई ड्रॉप्स है. सो लूप डायरेटिक्स आप देख ली, ये हुआ लूप डायरेटिक्स का. सो अब हम चलते हैं ऑस्मोटिक डायरेटिक्स. ऑस्मोटिक डायरेटिक भी लूप ऑफ हेनेल में एक्टिंग है. आप देख सकते हैं ना, इधर पीसीटी में फर्स्ट इसका एक्शन कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर है, तब उसके बाद थिक एसेंडिक लूप ऑफ हेनेल में लूप डायरेटिक्स, इसमें लूप डायरेटिक्स लूप ऑफ हेनल में, और डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली में ऑस्मोटिक डायरेटिक है. तो आप इस एक फिगर से आप इधर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख सकते हैं, इसका कहाँ कौन सा रीजन में कहाँ एक्ट हो रहा है वो भी देख सकते हैं. सिंपलर के वजह से ये लाइक सिंपलर होगा आपको पढ़ने के लिए, याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए ऐसा पिक्चर प्रेजेंट हुआ है. सो ऑस्मोटिक डायरेटिक से आपसे नाम से पता चल रहा है कि वो ऑस्मोसिस के हिसाब से जा रहा है. ऑस्मोसिस आप पढ़ चुके होंगे ना, ऑस्मोसिस हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाता है. तो ब्लड में हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो यूरिन से फिल्ट्रेट हो रहा है, तो सब वाटर इसमें चला जाता है, पूरा वाटर ये यूरिन. ये जो नेफ्रॉन ना, ये नेफ्रॉन ऐसे बहुत सारे बिलियंस और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स रहते हैं बॉडी में, तो हमारे किडनी में रहते हैं, तो किडनी से सब यूरिन निकल जाता है. तो इसे ऑस्मोसिस, बेस्ड ऑन सिंपल ऑस्मोसिस, जो फ्रीली सोल्यूबल वाटर सोल्यूट से वो सब निकल जाता है, बेस्ड ऑन हाई कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. सो इसके वजह से बहुत सारा वाटर निकलता है. लूप डायरेटिक्स के बाद ऑस्मोटिक डायरेटिक में बहुत सारा यूरिसिस होता है, मतलब यूरिनेशन निकलना. ये तीनों ऐसे है. अब मैं ऑलरेडी बोल चुकी, मैनिटॉल रहता, ग्लिसरॉल रहता, और ग्लिसरॉल ज़्यादातर पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि ग्लिसरॉल में थोड़ा शुगर कंटेंट रहता है. सो मैनिटॉल वन ऑफ द बेस्ट है, और आईवी इंजेक्शन में ही मिलता है मैनिटॉल. फ्यूरिसमाइड ऐसा है कि आईवी और ओरल भी रहता, बट ये मैनिटॉल सिर्फ आईवी में अवेलेबल है. और मैनिटॉल ऐसा ऑस्मोटिक डायरेटिक वो एक ही, ज़्यादातर 90% ज़्यादातर बहुत सारे पेशेंट्स जिसमें स्ट्रोक या इंटर आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईओपी ऑक्यूलर, ओ मतलब ऑक्यूलर, क्रेनियल मतलब ब्रेन में. सो आफ्टर स्ट्रोक जिसका आईसीपी बढ़ जाता है, ब्लीड होता है, वैसे केसेस में आप मैनिटॉल प्रिस्क्राइब करते हैं. अब इसके बाद जब हम डीसीटी पढ़ेंगे ना, डीसीटी में थायराइड डायरेटिक्स. थायराइड डायरेटिक ये भी लूप डायरेटिक जितना ही वर्क करता है, मतलब इतना कंपेयर टू लूप डायरेटिक और हॉस्पिटल डायरेटिक जितना यूरिसिस नहीं करता, माइल्ड और मॉडरेट रहता है इसका, मतलब यूरिन में एक्सक्रीशन माइल्ड और मॉडरेट रहता. और हम जब ये थायराइड डायरेटिक्स पढ़ेंगे ना, ये मोस्टली एल्डरली पीपल को देते हैं, और ये ओरल फॉर्म में अवेलेबल है. हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, क्लोरथैलिडोन, ये सब ओरल फॉर्म में और ओडी डोज में देते हैं. सिंगल डोज रहता है, ये इंपॉर्टेंट है. क्योंकि सिंगल डोज में क्यों देते हैं, इसका वजह से यूरिसिस होता है, और ज़्यादातर बोली थी ना मैं, बुजुर्ग को जीरियाट्रिक केसेस को देते हैं.
तो इसके वजह से ये ओडी डोज में देते हैं। और इधर भी एक सिम्पोटार इनहिबिट्स सोडियम क्लोराइड सिम्पोटार, इधर भी वो इनहिबिट होने की वजह से सोडियम और क्लोराइड निकल जाता है यूरिन से, और कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। देखो, अब मैं ऑलरेडी हम सब जगह देख रहे हैं कि इनहिबिट कर रहा है। ये देखो यहाँ इधर इनहिबिट सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड आयंस, ये इनहिबिट कर रहा है, इसकी वजह से ये सब यूरिन से निकल जा रहा है। और इधर भी सोडियम और क्लोराइड, ये सिम्पोटर की वजह से आप देख सकते हैं ना कि इधर हाइपोनाइट्रेमिया हो रहा है क्योंकि सोडियम है पोटेशियम है, इधर भी हाइपोनाइट्रेमिया हो रहा है। और इधर कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कैल्शियम भी निकल रहा है एक्चुअली बॉडी से, यूरिनरी कैल्शियम डिक्रीज हो रहा है और बॉडी में कैल्शियम लेवल्स बढ़ रहे हैं, मतलब ब्लड में। इसकी वजह से ब्लड के जो भी फाइंडिंग्स में क्या रहेगा, हाइपर कैलिसीमिया रहता है, और यूरिन में कैल्शियम निकलना कम हो रहा है। इसकी वजह से ना नेफ्रॉन्स में जब ये यूरिन रहेगा नहीं ना, इसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज एक रहती है, कैल्शियम नेफ्रोलिथियासिस, मतलब कैल्शियम स्टोन्स। और किडनी में स्टोन्स कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या कोई और मैग्नीशियम की स्टीरेज से सब कंपाउंड से स्टोन बनता है। अगर यूरिन में कैल्शियम की कमी कम हो रही है तो स्टोन्स बढ़ने का तो मतलब उसका कोई सवाल ही नहीं है, बढ़ नहीं सकता, मतलब बहुत कम रहेगा, उसका जो परसेंटेज बढ़ने का कम रहता है। और ये ब्लड में ऑब्जर्व हो रहा है कैल्शियम, इसके वजह से ना हाइपो मतलब कैल्शियम के लेवल्स कम नहीं हो रहे हैं ब्लड में, हाइपर कैल्शियम बॉडी में दिख रहा है। ये एक अच्छा एडवांटेज है थायराइड डायरेटिक्स। अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन है और उसको किडनी की बहुत सारी प्रॉब्लम से रिपीटेड स्टोन्स आ रहे हैं, तो उसको इसमें प्रिस्क्राइब करने से क्या होता है कि यूरिनरी में कैल्शियम लेवल्स कम होने की वजह से स्टोन्स फिर से नहीं आने के रीअकरेंस कम रहता है, वो है। अब फिफ्थ वन कलेक्टिंग डक्ट एक है। कलेक्टिंग डक्ट आप देख लिया। अब कलेक्टिंग डक्ट में इस जगह दो ड्रग्स, मतलब मेजर इसका नाम पोटेशियम स्पिरिंग डायरेटिक्स है। इसमें एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट एक टाइप ऑफ क्लास है ए, और बी एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर। ये दोनों काम तो एक ही करते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग। इससे पता चल रहा है ना, पोटेशियम स्पेयरिंग, बाकी सब आयंस निकल जाते हैं, पोटेशियम एक बच जाता है। उधर एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट एक है, ये एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट को इनहिबिट करता है। इसके वजह से ना ये जो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और पोटेशियम सिक्रीशन थोड़ा कम हो जाता है। तो सोडियम तो यूरिन से निकल जाता है बट पोटेशियम रह जाता है। वही कि एल्डोस्टेरोन एगोनिस्ट मतलब एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन रहता है हमारे बॉडी में, और मिनरल एक है, उसको मिनरल एंटागोनिस्ट भी बुला सकते हैं, पोटेशियम लाइक स्पाइरोलैक्टोन और एपिनेफ्रिन को, ये दोनों ड्रग्स को एमआरए भी बुला सकते हैं हम लोग। इधर वो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर रहते हैं, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। कहाँ, डीसीटी में, मतलब कलेक्टिंग डक्ट में। आप सोचो कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल का कन्वर्टर ट्यूब, ये दोनों मोस्टली कलेक्टिंग डक्ट में ही 90% ज़्यादा, 10% इधर भी वर्क करता है। सो कलेक्टिंग डक्ट में ब्लॉक कर देता है और रिसेप्टर को ब्लॉक करने के बाद सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है ब्लड में, और पोटेशियम का सिक्रीशन कम हो जाता है यूरिन में, ये होता है। सो पोटेशियम रिटेन हो जाता है। जब पोटेशियम ब्लड मतलब यूरिन से कम जा रहा है तो पोटेशियम रह जाता है, और उसके वजह से जब ब्लड लेवल्स चेक करेंगे तो हम लोग को हाइपर कैलिसीमिया दिखेगा। सो ये कहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर इसका इफेक्ट हाइपर कैल्सीमिया है तो हाइपर कैल्सीमिया जो पेशेंट है, जो रिपीटेडली उन लोग को पोटेशियम लेवल्स कम होते हैं, तो उन लोग के वो केसेस में ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसका मेजर एरिया देखिए गायनिकोमास्टिया, गायनिकोमास्टिया गायनिकोमास्टिया, ये मोस्टली मेल्स में दिखता है गायनिकोमास्टिया, जो अगर मेल पेशेंट की इसको प्रिस्क्राइब करने के बाद, ये एक एडीआर है। इसमें ऐसा रहता है कि मतलब चेस्ट रहता है ना, जो चेस्ट रीजन है उसमें फाइब्रस टिश्यू सब बढ़ जाना। इट लुक्स लाइक फीमेल पर्सन जैसे दिखता है, मेल बूब्स फीमेल पर्सन जैसा दिखता है। ये एक वन ऑफ द मेजर एडीआर एमसीक्यू है। उसके बाद स्पाइनल एक्टोन भी ओरल फॉर्म में अवेलेबल है, वो भी 2500 mg पर डे। एपिनेलॉन भी 25 mg ऐसे मिलता है। तो दूसरा भी एनैक ब्लॉकर्स, सो बोली थी ना मैं, ये एक रीनल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स है।
एनैक ब्लॉकर्स उसको बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, सेम सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और बॉडी में पोटेशियम की पोटेशियम सेक्रेशन यूरिन में कम हो जाता है, इसकी वजह से पोटेशियम बॉडी में बढ़ता है, ब्लड में। सो इधर आप देख सकते हैं ये 2 है। अब फर्दर हम स्लाइड्स में जाके देखेंगे कि कैसा पूरा मतलब एडीआर्स कैसे चल रहा है सब। तो ये एक छोटा-सा टेबुलर फॉर्म में दिखाया है कि मैं बोली थी ना एनहाइड्रस, कार्बोनिक एनहाइड्रस। आप देखेंगे ये न्यूरॉन था। जब हम इधर आए तो पीसीटी था, या इधर कार्बोनिक एनहाइड्रस काम कर रहा था। इधर जब लूप ऑफ एनल स्टार्टिंग में तो लूप डायरेक्टिक्स काम कर रहे थे। जब थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनल में गए तो तब क्या वो ऑस्मोइड डायरेटिक था वर्क उसका, और डीसीटी में आ गया, डीसीटी में था डायरेटिक्स था। और कलेक्टिंग डक्ट में हर एक रीजन में एक है, पीसीटी में एक था, लूप ऑफ एनल में एक है, थिक असेंडिंग लूप ऑफ एनल में एक है, डीसीटी का एक वर्क है, और एक कलेक्टिंग डक्ट का एक एक्शन है। सो आप ये न्यूरॉन डायग्राम और जो प्रीवियस फिगर है ना उसको याद रखने से ना ऑटोमेटिकली आपको ये याद रह जाएगा। सो वो टेबलर फॉर्म में बस दिया है आपके जस्ट पढ़ने के लिए, फॉर रीडिंग पर्पस। सो अब हम कार्बनिक एनहाइड्रस में आएंगे। ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ एस्टेजोलामाइड, एस्टेजोलामाइड था, एस्टेजोलामाइड, ब्रेंजोलामाइड एंड डोर्जोजोलामाइड, ये तीनों ऐसे हैं। ये 2 तो आई ड्रॉप्स में अवेलेबल है और ज़्यादातर एस्टेजोलामाइड पे यूज़ करते हैं टैबलेट फॉर्म में। और का इनहिबिट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, इनहिबिट कार्बोनिक एनहाइड्रस की वजह से इंक्रीज इन यूरिनरी सोडियम एंड बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन। बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन की वजह से मतलब एक्सक्रीट हो रहा है, ब्लड लेवल्स में बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो रहा है, इसके वजह से यूरिन एल्कलोसिस ये एक होता है। दिस इज वन ऑफ द मेजर एरिया, मतलब आपको याद रखना है। हाइपोनेट्री में हाइपोकैल्सियम में तो याद ही रहेंगे आपको। और यूरिनरी एल्कोलिस हो रहा है तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ये काउंटर इफेक्ट है बॉडी के लिए, इसलिए हो रहा है। बोन मैरो डिप्रेशन, हाइपरटेंसिव रिएक्शन, ये बहुत ही 1 to 2% पीपल में दिखता है। तो याद रख लीजिए बस, बस याद तो ये फर्स्ट के 4 इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट स्लाइड ये है कि लूप डायरेटिक्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लूप डायरेटिक्स ये कौन से, ये सब इनहिबिट करता है ना इसको। तो ये हाइपोनेट्री में हाइपोकैल्सीमिया हो गया, हाइपोनेट्रिपिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीशियम, हाइपोकैल्शीमिया हो गया, ये सब इसको कम करता है। बट हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरेसीमिया, हाइपरलिपिडेमिया ये 3 को ज़्यादा हाइपर करता है। ये क्योंकि ना हाइपर कैल्शियम लेवल्स अगर हमारे इंटरसेलुलर में, अगर सेल के अंदर अगर पोटेशियम निकल जाता है ना, सेल के अंदर पोटेशियम निकल जाता है, तो इसकी वजह से ना हमारे जो इंसुलिन है, इंसुलिन इंसुलिन सेल्स सेंसिटिव हो जाते हैं। वो सेंसिटिविटी की वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, जीआरबीएस मतलब ग्रॉस रैंडम ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाते हैं नॉर्मल ब्लड में, ये इसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है। अब पर हाइपर यूरेसीमिया और हाइपर लिपिडीमिया ये तो लेवल्स, क्योंकि एक्यूमुलेशन होता है इधर लिपिड्स का और वो सबका एक्यूमुलेशन होता है, इसकी वजह से ये भी यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होता है, हाइपर यूरेसीमिया। और आप इधर देख रहे हैं हाइपर यूरेसीमिया हो रहा है पेशेंट, तो आपको गैस हो जाना चाहिए हाइपर यूरेसीमिया कौन से कंडीशन में होता है, गाउट। गाउट ऐसा कंडीशन है जहाँ यूरिक एसिड के लेवल्स ज़्यादा रहते हैं पेशेंट को। अगर पेशेंट, आपको याद रखना है कि बहुत सारे हाइपरटेंसिव पेशेंट ऑलरेडी इस टाइप ऑफ ड्रग में है और उनको ना ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। ये गाउट ऐसा कंडीशन जिसमें यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके साइन और सिम्टम्स कैसे रहते हैं मानो, जो हमारे जॉइंट्स रहते हैं ना, फिंगर जॉइंट्स, ये सोचो फिंगर, ये फिंगर के जो जॉइंट्स रहते हैं स्वेलिंग रहता, आर्थराइटिस जैसा पेन जैसा रहता है बट स्वेलिंग रहता बहुत तक। और नी के जो मतलब फुट के जो रहते हैं ना एंकल के पास जॉइंट्स वो फूल जाते हैं, और फीट बहुत फूल जाते हैं, बहुत पेनफुल पेन रहता है। इसकी वजह से हम लोग सीरम यूरिक एसिड लेवल्स चेक करना चाहिए। सीरम यूरिक एसिड मोर देन 7 to 7.4, जब इससे ज़्यादा रहता है ना, मोर देन 7 या 7.4 वैल्यू से ज़्यादा रहता है ना, तब हम लोग यूरिक एसिड कम करने के लिए ट्रीटमेंट देता है। सो हाइपर यूरेसिमा होता है, इसलिए गाउट पेशेंट्स के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन।
आप लोग को याद रखना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन गाउट और एमिनोग्लाइकोसाइड और डिस्टालिस टॉक्सिसिटी। एमिनोग्लाइकोसाइड आप जानते हैं ना, एमिनोग्लाइकोसाइड कैसे ड्रग्स है, जैसे एमिकैसिन एंड जेंटामाइसिन। एमिकैसिन तो एक ही ड्रग है जो वाइडली यूज करते हैं, वो भी आईवी फॉर्म में यूज कर रहे हैं। और ये यूरिनरी केसेस के लिए या पोस्ट ऑप सर्जरीज के लिए जितने भी है वो एनारोबिक कवरेज देता है। एनारोबिक आप जानते हैं ना, एरोबिक कवरेज एंड एनारोबिक कवरेज भी रहता है ऑर्गेनिजम्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ इन्फेक्शन आया आपको, उसमें डिफरेंट इन्फेक्शन मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिस एंटीबायोटिक को रिएक्ट होता है और जिस एंटीबायोटिक की वजह से वो किल होता है, उसको हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट बोलते हैं। सो ये एमिनोग्लाइकोसाइड्स मोस्टली एनारोबिक कंडीशंस में दिया जाता है पेशेंट्स को। पोस्ट ऑप पेशेंट्स मोस्टली बहुत सारे सर्जरीज के लिए मोस्टली वाइडली यूज करते हैं। तो इधर एनहांस द एमिनोग्लाइकोसाइड टॉक्सिसिटी। वैसे एमिनोग्लाइकोसाइड टॉक्सिक है कौन से, नेफ्रो वो थोड़ा नेफ्रोटॉक्सिटी प्रोड्यूस करता है और ओटोटॉक्सिटी प्रोड्यूस करता है एमिनोग्लाइकोसाइड। एमिक एसिड ड्रग समझ लो। अब इसकी वजह से जब लूप डायरेटिक्स और ये देंगे ना मिक्स करके, जब लूप डायरेटिक प्लस एमिक एसिड ये दोनों देंगे, इसकी वजह से ना एमिक एसिड की टॉक्सिसिटी लेवल्स बढ़ जाती है। अब टॉक्सिसिटी मतलब आप समझते हैं ना, टॉक्सिसिटी मतलब ब्लड में इसका जो एमिक एसिड के रेसिड्यूज रहते हैं वो रह जाता है, इसकी वजह से बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता, टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता है। नॉर्मल थेरेपेटिक रेंज के हिसाब से जब काम करते हैं तो एक्सक्रीशन यूरिन में नॉर्मली हो जाना चाहिए, बट टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाना मतलब ब्लड में एक्यूमुलेशन हो जाता है इस ड्रग्स के। कब, जब ब्लू डायरेक्टिव से इसके मिक्स होता है तो कॉम्बिनेशन देते हैं तो। इवन डिजिटलिस टॉक्सिटी। अब डिजिटलिस ऐसा ड्रग है कि मेजर ड्रग है, वो तो हार्ट फेलियर कंडीशंस में उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इवन लूप डायरेटिक्स भी ऐसा ड्रग है कि हाइपरटेंशन इमरजेंसी में बहुत सारे इसमें लूप डायरेटिक्स ही यूज करते हैं। मतलब बाकी जितने डायरेटिक्स है उसमें इमरजेंसी कंडीशन में, लूप डायरेटिक्स इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं, इमरजेंसी हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग हो या कहीं भी छोटे क्लिनिक्स हो, इमरजेंसी हाइपरटेंशन के लूप डायरेटिक्स यूज करते हैं। सो इधर भी वो डिजिटली टॉक्सिटी बढ़ाता है, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड और एमिक एसिड की टॉक्सिटी बढ़ता है, वैसे डिजिटलिस टॉक्सिटी भी लूप डायरेटिक्स से कंबाइन होने के बाद बढ़ जाती है। तो ये था लूप डायरेटिक्स। ऑस्मोटिक और थायराइड डायरेटिक्स, इधर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मैनिटॉल एक है, मैनिटॉल एक ड्रग है। आप देख लिए, मैनिटॉल है, ग्लिसरॉल है, यूरिया है, बट मैनिटॉल एक ऐसा है कि ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और बोली थी ना मैं, सेरेब्रल एडिमा, सेरेब्रल एडिमा में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सेरेब्रल एडिमा जहाँ आईओपी बढ़ जाता है पेशेंट्स, आईसीपी सॉरी सीपी आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर और ग्लाकोमा कंडीशन, आईओपी दोनों में यूज़ किया जाता है, बट मोस्टली सेरेब्रल एडिमा कंडीशंस में यूज़ है। ग्लाकोमा में भी यूज़ होता है, बट ग्लाकोमा में कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स है, तो उसकी वजह से फर्स्ट वो ट्रीटमेंट होगा ड्रॉप्स, उसके बाद अगर नहीं होता तो मैनिटॉल में आते हैं। तो ऑलरेडी बोल चुकी हूँ ऑस्मोटिक, तो ऑस्मोसिस की वजह से होता है। तो आप एडवर्स इफेक्ट देखेंगे तो हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोक्लोरिनीमिया है, हाइपर कैल्शियमिया तो आप देख चुके हैं, हाइपर यूरेसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, सेम जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखिए ना, ये सब जब इंट्रासेलर सेल में थोड़ा पोटेशियम मैग्नीशियम सब कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सेंसिटिविटी या कुछ एक्यूमुलेशन की वजह से तीनों बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं अभी। ये पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स है, ऑलरेडी हम सब देख चुके हैं, ये दो इसमें आते हैं, ये दो इसमें आते हैं, तीनों। सो हम इधर देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एमिलोराइड, एमिलोराइड इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिथियम इंड्यूस्ड इन डायबिटिक इंसिपिडिस। डायबिटिक इंसिपिडिस ऐसा कंडीशन है जिसमें यूरिन थ्रू यूरिन से बहुत सारा वाटर, बहुत सारे प्रोटीन्स, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादातर निकल जाता है, ये क्योंकि काउंटर इफेक्ट की वजह से होता है। एडीएच एक ऐसा हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। इन पीपल जो डायबिटिक इंसिपिडियस होता है ना, उन लोग में ये हार्मोन इम्बैलेंस होता है।
तो इन लोग के मतलब डायबिटिक इंसिपिडिस जिसको भी होता है उन लोग को 3 मेजर प्रॉब्लम्स होती है। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया तो आप जान चुके हैं। डिस्फेजिया तो इंक्रीज थर्स्ट। पॉलीफेजिया मतलब ज़्यादातर खाने का होता है उन लोग को, हंगरनेस बहुत ज़्यादा रहता है। ये तीनों कंडीशंस रहते हैं। और जब ये लिथियम मतलब ऑलरेडी पेशेंट डायबिटिक इंसिपिडियस है या कुछ और रीज़न की वजह से लिथियम प्रिस्क्राइब किया। लिथियम ड्रग है जिसमें बाइपोलर या कोई मैनिक डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर में लिथियम यूज़ किया जाता है। मतलब आजकल यूज़ नहीं हो रहा है, मतलब आज है पेशेंट्स बहुत कम लोगों में, क्योंकि आजकल बहुत एडवांस ट्रीटमेंट्स है जिसमें एसएसआरआईज़ और डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट में बहुत सारे ड्रग्स है जिसमें यूज़ करते हैं। बट लिथियम भी वन ऑफ द चॉइस है, डिपेंड्स ऑन पर्सनल और वो केस सिनेरियो के हिसाब से। जब ये लिथियम डायबिटिक इंसिपिडियस पर्सन में दिया जाता है तो ये क्या होता है कि ना ये एमिलोराइड के साथ कॉम्पिटिट करता है बाइंडिंग होने के लिए। तो एमिलोराइड ये ऐसे केसेस में देते हैं, सो लिथियम जब बाइंड होता है उसको इनहिबिट करता है एक्सक्रीट करने के लिए। लिथियम आयन है ना, वो एक आयन है, तो सो उसको एक्सक्रीट करना है ना यूरिन में, अगर वो रह जाता है तो लिथियम टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है ना बॉडी में। तो एमिलोराइड ऐसा ड्रग है कि वो उसको बाइंडिंग को इनहिबिट करता है फर्दर और उसको यूरिन से निकालता है। सो लिथियम बेस्ड अगर है तो ऐसा एमिलोराइड परफेक्ट ड्रग है। स्पाइनल एक्टन, मैं बोल चुकी हूँ स्पाइनल एक्टन और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। तो एंटागोनिस्ट एल्डोस्टेरोन डिक्रीज सोडियम एंड इंक्रीज पोटेशियम। ऑलरेडी बोल चुकी हूँ पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग है तो इंक्रीज होगा। और मॉड्यूरेटिक ब्रांड नेम है, इसमें एम्लोराइड और हाइड्रोक्लोरोथायजाइड दोनों प्रिस्क्राइब किया जाता है। ये वन ऑफ द मेजर है ब्रांड नेम जो ज़्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाता है। एमआरएस मैं बोल चुकी हूँ, मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है जब सीरम पोटेशियम ऑलरेडी 5 है। 5 मतलब ऑलरेडी वो उसको हाइपरकेलीमिया तो है ही, हाइपरकेलीमिया तो है ही। अब ऑलमोस्ट फिर से वापस एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देंगे तो 5 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। वापस पोटेशियम की वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, हार्ट में मेजर डिफरेंस दिखेंगे आपको, फिर वापस हाइपरग्लाइसीमिया डिफर हो जाएगा। ये सब रीजंस है, काउंटर इफेक्ट बहुत ज़्यादा है और क्रिएटिनिन क्लियरेंस बिलो 30, ये याद रखना है। अगर ये दोनों है कंडीशन तब भी ये नहीं दे सकते हम लोग। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं इधर, ऑलरेडी सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स ग्लूकोमा में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। और इसमें याद रखने वाली बात యూరినరీ అల్కలిసిస్, ఇక్కడ లూగారిటిక్స్ ఉంది. లూగారిటిక్స్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే హైపోనాట్రిమి, హైపోకాల్సిమి ఇవన్నీ కామనే. హైపోనాట్రిమి, హైపోకాల్సిమి అందరికీ కామన్. బట్ ఇక్కడ హైపర్గ్లైసీమి, హైపర్యూరేసిమి, హైపర్లిపిడేమి ఇవి ఇంపార్టెంట్. డయాజిడైరెటిక్స్లో ఏంటి ఇంపార్టెంట్? హైపర్కాల్సిమి, ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్. కాల్షియం యూరోనెఫ్రోలైటోసిస్, కిడ్నీ స్టోన్స్ రాకుండా ఉంటాయి. ఇక్కడ పొటాషియం స్పేరింగ్ డైరెక్టిక్స్లో ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటా? హైపర్కాలిమియా అండ్ గైనకోమాస్టియా, ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటా. లూప్ డైరెక్టిక్స్లో అమినోగ్లైకోసిస్, డిస్టాలిస్. ఎందుకంటే అమినోగ్లైకోసిస్ బాగానే వాడతాం, ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్ డ్రగ్. అండ్ డిస్టాలిస్ అంటే హార్ట్ ఫెయిల్యూర్కి అదే వన్ ఆఫ్ ద మేజర్. సో ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇంట్రాక్షన్స్. అయితే ఇవి ఇంట్రాక్షన్స్ లూప్ డైరెక్టిక్స్కి, ఇవి మేజర్ థింగ్స్. ఇంకా నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్దాం. సో ఇవన్నీ ఎంసీక్యూస్. ఇప్పుడు ఎంసీక్యూస్లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేద్దామని, అంటే డైరెక్టిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ బోమన్స్ క్యాప్సూల్ దగ్గర డిస్కస్ చేసుకున్నాం. మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాం? బోమన్స్ క్యాప్సూల్ ఓన్లీ ఫిల్టరేషన్ ఒక్కటే జరుగుతుందని డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫిల్టరేషన్, అన్ని ఫిల్టర్స్ అవుతాయి. H2O నుంచి NH4 అయాన్ అనుకోండి, లేకపోతే సోడియం, పొటాషియం, అన్ని ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఫ్రీలీ సోల్యూట్, అన్ని ఫ్రీగా వెళ్ళిపోతాయి. ఓన్లీ ఫిల్టరేట్ మేజర్ ఏమైనా ఉంటే అవే తప్ప అన్ని అయాన్స్, పార్టికల్స్ అవన్నీ ఇంకా ఫిల్టరేట్ అయిపోతాయి. సో బోమన్స్ క్యాప్సూల్ ఓన్లీ పర్ఫార్మ్స్ ఫిల్టరేషన్, అంతే, రీఅబ్జార్ప్షన్ చెయ్యదు. మీరు ఒకసారి స్లైడ్కి వస్తే స్లైడ్లో ఇది కూడా ఉంది. ఏముందంటే